All right, everybody has my voice. Yes. All right, beta. I was listening to the lecture before this. It was an interesting lecture. मुझे ये नहीं समझ आ रही थी वो कौन से डॉक्टर साहब थे और कौन सा सब्जेक्ट था फिजियोलॉजी था और कौन से सर थे जो कि पढ़ा रहे थे नेम ऑफ द डॉक्टर जावेद शुक्रिया साहब ठीक हो गया दैट इज व्हाई ही हैज सच एन इंप्रेसिव अप्रोच अच्छा बेटा I am going to continue from the same pace or from the same point that Sir Shakhez has left. We are going to talk about the same thing, hemoglobinopathies today, as Dr. Aisha might have taught you the basics of hemoglobin, and today we are going to talk about hemoglobinopathies. Okay? We are going to talk about the same thing that Dr. Shakhez was talking about, that oxygen dissociation and carbon monoxide in association with the total hypoxemia of a patient or a state of hypoxemia in a living organism or in a living man, but with a little difference that the physiology of hemoglobin binding with the carbon monoxide and producing a state where body does not get enough oxygen to respirate or survive has another major side that is under my domain, which comes why blood does not or hemoglobin does not bind to the oxygen which is available in the blood as well or in the serum as well, in the lungs as well. That is due to a structural formation of hemoglobin which has more affinity to bind carbon monoxide rather than oxygen. For that really purpose, if somebody is suffering from intoxication of carbon monoxide, it is very hard to revive him only by exposing or exposing him into the fresh air or maybe discontinuation of carbon monoxide. You need to do some very major things to save his or her life. Okay? So from this point of view, for understanding of this little thing, we need to know structurally hemoglobin, and then we come when we get to know that what is a normal hemoglobin is like, तो हम उसके अंदर hemoglobin की different pathologies या different malformations को एक touch down करेंगे, उसको biochemically relate करेंगे और फिर physiologically और pathologically. So एक overall view मेरे पास से आप लोगों को मिलेगा from the starting scratch of the mechanism till the presentation or clinical and management. ठीक हो गया? अच्छा जी, ये तो मेरा हो गया. अच्छा, अब ये hemoglobinopathies बड़ा recently at the time of COVID मैंने अपनी dental batch 2019 को पढ़ाया था. Unfortunately, as I very clearly remember, we didn't have a chance to teach this one-to-one. So those students who have joined, अभी मैंने शेयर नहीं किया बेटा, अभी मैं शेयर करूंगा, अभी तो मैं बोल रहा हूँ. Those students who have joined in the recently, have you studied these hemoglobinopathies with me earlier? जो बच्चे नए आए हैं बेटा, उन्होंने ये मेरे से पढ़ी है चीज इसी तरह ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर? कोई जवाब दे दो, किधर हो सारे? अमान कर दिया नो से, ठीक हो गया. अरे बेटा, अच्छा मैं
ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को मेरे ज़हन में आ गया कि मैंने करना क्या था। इसमें से शेयर किधर से आता भाई? एक मिनट। अब आ गया शेयर। ऑलराइट, अब all of you have the share screen. Okay, right, हो गया। अच्छा, कमिंग बैक टू द व्हाट वी वर एक्चुअली। बेटा जिन लोगों ने, तो मैंने अभी तक गिना नहीं है, जिन लोगों ने तो मुझे असाइनमेंट नहीं सबमिट कराई उनके साथ तो फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में, और अगर सबने सबमिट करा दिया तो उसके ऊपर एक ओवरव्यू दूं। बेटा आगे दो और पीछे छोड़ वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। um, यार जो हमने प्रोटीन का बेसिक ओवरव्यू पढ़ा उसमें कुछ चीज़ें हैं, आइदर अनफॉर्चुनेटली वो हरकत दोबारा से रिपीट हुई थी जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैंने जितनी डिटेल में समझाया है और रेफरेंस दिया है उसकी हकीकत को कि जी कॉपी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, वो खुल के हुई है। उसकी अब रीज़न आप लोगों की केयरलेसनेस है, और मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जी वो उसका एक ओवरव्यू। बेटा सबसे पहले प्रोटीन की डाइजेशन शुरू होती है स्टमक से। ठीक है, मैं आपको उसके आपके असाइनमेंट की एक रिकॉल दे रहा हूँ क्योंकि आई बीन चेकिंग इट कंटिन्यूसली और मुझे वो बड़ा एक फील हो रहा था कि एक टॉपिक बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दरमियान में रह रहा है। और मजे की बात है, हीमोग्लोबिन और ग्लोबिनोपैथीज एंड ऑल दैट अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन्स के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स बेटा स्टमक से डायरेक्शन शुरू होती है। स्टमक के अंदर सबसे पहला रोल है HCl का। डिसइंफेक्शन का रोल आप लोगों को मेंशन करें ना करें, वी डोंट केयर अबाउट इट। अब हाँ, it has a major impact on changing the pH. Significance to change the pH उसकी ये होती है कि dissociation of proteins to give their different substitutes released can only be done in acidic medium, because normally all the proteins are acids, and most of them, other than the exception of couple of them, are negatively charged. So if a medium of proteination stronger than proteins or a stronger than a weak acid is being given, तो वो डिसोसिएट करते हैं। वो नेगेटिव होते हैं, वो पॉजिटिव लेते हैं, और पॉजिटिव लेते ही वो डिसोसिएशन के लिए रेडी हो जाते हैं। सबसे कॉमन और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है। उसके बाद HCl causes or change in the pH causes activation of zymogenic pepsinogen into pepsin, not HCl itself. The change in pH causes. ठीक हो गया। उसके बाद the next step is कि जब आपके बड़े बड़े लॉन्ग चेन्स को शॉर्ट चेन्स ऑफ प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया जाता है इन स्टमक, बड़े प्रोटीन को छोटे में। अभी प्रोटीन ही है, उसको अमाइनो एसिड में नहीं कन्वर्ट किया। फिर स्टमक की जो डाइजेशन है वो उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, जहां से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं थ्रू पोर्टल पाथवे जो लिवर के थ्रू रिलीज होते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों ने एक्टिवेशन के मुख्तलिफ पाथ है। बेटा जैसे ही आपका काइम स्टमक से इंटेस्टाइन में रिसीव होता है, इट हैज एन ऑल्टर्ड पीएच, अ पीएच मोर इनटू एसिडिक मीडियम रादर देन अल्कलाइन। और जितने
पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो अल्कलाइन पे काम करते हैं, वो एसिडिक में नहीं काम कर सके. सो फॉर जो वो एंटेरो पेप्टाइडेजेस हैं या एंटेरोकाइनेजेस हैं जो कि आपके एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरियल म्यूकोजा से रिलीज होते हैं या म्यूकोजल बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं. दे हैव एन ability or a duty to change that pH, and as soon as the pH changes, the pancreatic juices they can be activated. अब ये पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज किसने करवाए बेटा? ये एंटेरोपेप्टाइडेजेस ने नहीं करवाए. ये बेसिकली जैसे ही फूड एंटर होता है आपके स्टमक के अंदर, आपकी एक वेगस नर्व स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है जिसको वेगल पैरासिम्पैथेटिक पाथवे कहते हैं. और इसकी वजह, इसके बैक ऑफ द लाइन इसके कैल्शियम आयन इनफ्लक्स होता है, या जिसे मैंने कहा था कैलमोडलिन मॉडल होता है, जो कि कोलिसिस्टोकाइनेन्स एंजाइमेटिक हार्मोनल चार्ज और सेंट्रली ड्रिवन, तीन चारों आपके पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं जब आपकी डाइजेशन स्टार्ट होती है. तो प्लीज इनको मिक्सअप ना करो. तुम लोग लिख सही रहे थे या तुम लोग कोशिश से आपने पढ़ा होगा या थोड़े बहुत बातें सही, मगर आप लोगों ने उसकी इमेज बिल्कुल ही चेंज कर दिया. और यूएचएस में यही होना है, इसके ऊपर कांटे बजने, और फिर आपने कहना है सर हमने तो सही करके आए थे, पता नहीं हमें नंबर नहीं मिले. चीजों को कंफ्यूज ना करो. उसके बाद हर बच्चे ने डिग्रेडेशन के लिए लिखा हुआ है. आपका क्या नाम है इसका, यूबिक्विनेशन पाथवे और दी लाइसोसोमल डिग्रेडेशन. और भाई लाइसोसोमल कई दफा पढ़ाया है. लाइसोसोम के अंदर प्रोटीन कैसे पहुंच गया इंट्रासेलुलर, जब तक कि वो इंटेस्टाइन से निकला नहीं है. तो इंटेस्टाइन से उसने निकलना है तो सेलुलर लेवल पे तो जाकर उसे डिग्रेड होना है, खुद से वो डिग्रेडेड जाना है, उसने उस वक्त तक डाइजेस्टेड जाना है या एब्जॉर्ब जाना है. तो वहां पे उसको दोबारा लाइसोसोम ने डिग्रेड करके दोबारा वैक्यूम निकालना है. यार वो आपको किताब में एक बात बताइए, उसको जरा दोबारा से पढ़ो, क्लियरली आपके माइंड में फिक्स होगी कि पोस्ट ट्रांसलेशनल डिग्रेडेशन होती है जो कि लाइसोसोमल होती है. और जो आपका डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है जब उसको थ्रू ब्लड सर्कुलेशन कैरी करना है, उसने पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर कैरी करना है, हेपेटोसाइट्स तक पहुंचाना है, ठीक है ना, या किसी और टारगेट टिश्यू तक पहुंचाना है, वो यूबिक्विनेशन के थ्रू जाता है. सो दीज आर दी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. ठीक है. फिर उसके बाद फेट ऑफ प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन. बेटा फेट ऑफ प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन सबसे पहले क्या होना है? सबसे पहला फेट क्या होना है? उसका नाइट्रोजन रिमूव होना है. तो उसके अंदर क्या तीन प्रोसेसेस आते हैं? डीएमाइनेशन, ट्रांसअमाइनेशन और ट्रांस और डीएमाइनेशन. पहला फेट ये हो गया. एंड एज सून एज दीज अमाइनो एसिड्स आर रिसीव्ड इनसाइड द बॉडी, दे कॉन्ट्रीब्यूट. और इनका फेट पहले किस चीज में आएगा? सबसे पहला किस में आएगा? ओवरऑल अमाइनो एसिड पूल मेंटेन करने का. दूसरा इनका फेट क्या आएगा? टू रन और टू मेंटेन दी टर्नओवर, प्रोटीन टर्नओवर. कि अगर कम है तो उसको फिक्स करेंगे और अगर ज्यादा खा लिया आपने तो उसको एक्सक्रीट करेंगे. ठीक हो गया. ये तीन स्टेप्स हैं. सबसे पहले making complex protein into smaller protein, stomach. वहीं से activation of digestive pathways जिसमें humoral है, neural है और enzymatic है. ठीक है. तीसरा क्या है? pH alteration. फिर स्टमक के अंदर क्या आ रहा है? इंटेस्टाइन में क्या आ रहा है? Conversion of smaller or simpler proteins into amino acids and absorption of them through ileum or jejunum inside the blood vessel through transporter system of intestinal wall, which are sympoters, sodium driven pumps, active transportation and passive transportation according to the size.
एंड आइसोमर्स। ठीक है जी, एल एन वो एल आइसोमर्स और आइसोमर्स के अंदर हमने पढ़ाया था। उसके बाद ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट आ गया, यूबिक्विनेशन। उसके बाद उसका फेट आ गया। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया तो फिर उसके बाद ओवरऑल नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन। जब बॉडी नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन करना शुरू करती है, उधर आके यूरिया साइकिल प्ले करता है फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ लेस टॉक्सिक एंड वाटर सॉल्युबल अमोनिया, और फिर आप यूरिया साइकिल बना दो। यार ये एक पेज के ऊपर ये 4 हेडिंग्स के अंदर ये पूरा चैप्टर, 2 चैप्टर पूरे आते हैं। सबने लिखा है, बट आई डोंट रियली गेट इट कि आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ आया कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड। एंड अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर क्लिनिकल पॉइंट AST ALT nobody even dared to mention, so nobody actually studied. You took a written piece of shit from some of your class fellows and you try to reproduce it by your own words. None of you have actually produced a significant material. इसकी सेम वजह यही है कि आपने से किसी ने हिम्मत नहीं की किताब खोल के पढ़ने की। हेडिंग्स भी पढ़ ली होते हैं ना किताब के लिपिन कॉट के, तो आप लोग इस तरह की बकवास ना लिखते। बाकी जो लोगों को मैंने एक्सीलेंट और वेरी गुड वर्क लिखा है, मैंने उनकी उस एफर्ट पे लिखा है जिसपे उन्होंने मुख्तलिफ चीजें प्रोड्यूस की हुई है। बाकी तो मेरे हिसाब से द ओवरऑल व्यू ऑफ द रिव्यू वाज अ कंप्लीट फेलियर। एनीवेज, गोइंग अहेड टू दिस टॉपिक। 20 मिनट मैंने अपने तुम लोगों पे इस पे जाया कर दिए। आई होप कि मैं जब बोल रहा हूं तुम लोग जहां पे बैठे हुए हो, तुम्हारे कोई पेरेंट्स बड़े छोटे साथ सुन रहे हो, ताकि तुम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत शायद वही लोग शर्म दिला दें कि यार किताबें भी खोलनी होती हैं। गोइंग अहेड, हीमोग्लोबिनोपैथीज। असाइनमेंट मैंने संडे को कहा था सबमिट करानी है, मुझे जनाब साहब आज ट्यूसडे हो गया, आज सुबह तक सबमिट हो रही है। आई मीन what a rubbish it is. अच्छा जी, going back to the topic of the day is hemoglobinopathies. It is a topic which deals with structural and formational deformity of a protein, a globular protein जिसको hemoglobin कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम अ सोर्स विच इज लंग्स थ्रू द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज, एंड द नेक्स्ट थिंग इज टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड और इन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज इनटू द लंग्स। ये बेसिक काम है। इसकी किसी भी किस्म की डिफॉर्मिटी लीड्स टू वन एंड ओनली वन डिजीज, विच इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस few very common symptoms and significant signs. उसमें सबसे पहला क्या है? आपको एनॉक्सिया होता है। एनॉक्सिया यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है, और ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ बॉडी डिक्लाइंस, गोज डाउन एंड causes death ultimately. The next thing which happens is कि ये जो फॉल्टी हीमोग्लोबिन्स होते हैं, ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा हूं बेटा, अगर आप मैं ओवरव्यू मांगूंगा तो इसी सीक्वेंस में ओवरव्यू में आना कि हीमोग्लोबिनोपैथीज से होता क्या है। सबसे पहले होगा ओवरऑल ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है
जिसके अंदर बॉडी ट्राइज टू फिक्स दी फॉल्टी सेल्स, और उस फॉल्टी सेल्स को फिक्स करने के लिए क्या करता है, हीमोग्लोबिन की कब्रिस्तान कहां पर है, आपके पैंक्रियास में। तो वो कोशिश करता है कि पैंक्रियास के अंदर आके इनको डिसोसिएट करके इनको दोबारा से मैन्युफैक्चर करे, और इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी जब डिसोसिएशन होके वो एक्सेस में बॉडी में आते हैं तो दे लीड फॉर एन एक्सेस ऑफ बिलोरुबिन इन योर बॉडी। तो दो चीजें हीमोग्लोबिनोपैथीज के साथ साइमल्टेनियस होंगी। एक तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और बॉडी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मुख्तलिफ इस्कीमिया कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से टिश्यू डेड होना या डिस्कलर होना। सो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इस डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इस्कीमिया को फेस करेगी बॉडी। और सेकेंड चीज जो साइमल्टेनियसली आपकी बॉडी करेगी वो आगे ये डिफेंस, इस चीज से बचने की कोशिश करेगी। और उसमें बचने के लिए वो क्या करेगी, इट ट्राइज टू गेट रिड ऑफ दीज फॉल्टी सेल्स, एंड व्हेन दीज फॉल्टी सेल्स आर बीइंग डिग्रेडेड, तो एज अ रिजल्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑफ डिग्रेडेशन विच इज इन एक्सेस, जॉन्डिस होगा। और क्योंकि कब्रिस्तान हमारा पैंक्रियाज है तो पैंक्रियाज के साइज में इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि पैंक्रियाज और लिवर आर सिबलिंग्स इन फंक्शन एंड इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, तो एक कॉन्टिन्यूस और विशियस चेन चलेगी जिसे स्प्लीनो या हेपाटोस्प्लीनोमेगाली कहेंगे, यानी लिवर और स्प्लीन बढ़ जाएगा और उसकी अपने अलग अलग नुकसानात हैं। सो ये दिस इज द ओवरव्यू। समझ आइए यहां तक बेटा? इट इज अंडरस्टूड नाउ कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड व्हाट आर द सीक्वेंसेस। ठीक हो गया? अच्छा, वन मोर पर्सन, सानिया, वेयर आर यू? वेयर इज सानिया? जी बेटा, आपको समझ आई इस ओवरव्यू की कि मैंने क्या कहा आपको? आप अगर आपको कोई असाइनमेंट कहा जाता है कि बेटा असाइनमेंट आप प्रोड्यूस करो, तो क्या डू यू थिंक कि आप ये 4-5 बातें इसी तरह बुलेटेड फॉर्म में एरो डाल के आगे मोटा मोटा लिख सकोगे? ऑलराइट, आगे चलते हैं। इटियोलॉजी। अब इस पूरी हीमोग्लोबिनोपैथी जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया, इसकी डिटेल में जब जाएंगे तो ये कई टाइप्स की है, ठीक है? अब उन टाइप्स को पढ़ेंगे। अगर हम कहेंगे हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या है, तो ये ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हीमोग्लोबिनोपैथीज की टाइप्स क्या है, तो अब आप इस लेक्चर को दोहराएंगे कि इसकी टाइप्स क्या है। और फिर अगर कोई फर्दर तीसरे कोर में डिटेल में जाता है और किसी एक स्पेसिफिक हीमोग्लोबिनोपैथी की डिटेल पूछता है, तो अगेन यू विल इनकॉर्पोरेट द नॉलेज ऑफ दिस लेक्चर। ठीक हो गया? Hemoglobinopathies are caused by qualitative hemoglobinopathies, production of structurally abnormal hemoglobin molecules, and quantitative hemoglobinopathies synthesize insufficient quantities of normal hemoglobin, both really. तो बेटा दो किस्म की हीमोग्लोबिनोपैथीज होगी मेजर काउंट पे, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो है जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन क्वालिटी ही खराब बन के आ रही है। जब क्वालिटी खराब बन के आती है तो उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते,
आपकी एक पूरी की पूरी लॉट जाया हो जाती है, या आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन साइड, या जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बनाई हुई चीजों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लोकल चीजों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आप कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते कि अच्छा आज ये मैंने बिस्किट नहीं खाया पाकिस्तानी, चलो अब मैं 2 दिन बाद खा लूंगा तो शायद अब बेहतर हो जाए. No, the quality is not that good, the standards are not that good, so the production shall never be good. तो जो क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, इसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन बना ही गलत होता है, और अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एन ओवरऑल malformed hemoglobin and resulting into a permanent sort of or incurable sort of diseases. दूसरी क्वांटिटेटिव है, यानी क्वांटिटी के हिसाब से. आपने 100 हीमोग्लोबिन दिन में बनाने थे, उसमें से आपने 80 सही बना दिए, 20 खराब बन गए. तो आप क्या करोगे, जब आप क्वालिटी चेक करोगे तो आप वो 20 वापस फेंक दोगे और उनको कहोगे इनको दोबारा बना के लेकर आओ. सो इन क्वांटिटेटिव hemoglobinopathies, there are chances or there are pathways that body fixes the situation, or external वो जो है external engineering or medicinal interruptions can fix the situation. ठीक है, right? अब ये दो कॉन्सेप्ट आ गया, what is qualitative hemoglobinopathies and what is quantitative. Do you understand that, Sania? Where is that the other girls? Q से जिसका नाम था, I don't remember. Kadria, yes, where is Kadria? Do you understand what is the difference between quantitative and qualitative hemoglobinopathies? Okay, going ahead. अच्छा, मजे की बात है, मैंने ना आज तक जितने अपनी क्लास में, जब से मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मेरे जूनियर, फिर हाउस जॉब, उसके बाद फिर टीचिंग में आना, और फिर क्लिनिकल भी करना, थ्रू आउट ऑफ दिस करियर, स्मॉल करियर है मगर फिर भी थ्रू आउट मैंने यही देखा है कि यार लड़के ज़्यादा नालायक होते हैं, लड़कियां लायक होती हैं, और ऐसे ही होता है, बस लड़के काम ही चला रहे होते हैं. मगर अनफॉर्चुनेट, मेरे लिए तो फॉर्चुनेट है और आप लोगों के लिए अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आप लोगों की आपकी क्लास में तो लड़के काम है. यार आप लोगों के तो लड़के बेहतर हैं यार, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं. थम्स अप टू द बॉयज. और मजे की बात है, वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल और क्या रिस्पॉन्सिबल है यार. आई एम अमेज्ड कि लड़के रिस्पॉन्सिबल हैं तुम्हारी क्लास में. सब ने विद इन द टाइम पीरियड सबमिशन करवाई, सब ने बड़ी इज्जत से कोऑर्डिनेट किया. बाकी नॉलेज और छापा और वो जो भी है, वो जो तुम लोगों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता. मगर हैट्स ऑफ टू बॉयज, थम्स अप, क्लैप फॉर योरसेल्फ बॉयज. I'm more impressed. Anyways, going ahead. खैर लड़के लड़के ही होते हैं, छा जाते. आगे चलते हैं. हीमोग्लोबिनोपैथीज आर. अब आपका दूसरा सवाल आता है जो कि बड़ा सिंपल सा आता है आपके लेवल में. इन हीमोग्लोबिनोपैथीज को हमने डिफाइन किया, अब इनकी एग्जांपल्स देखो. क्वालिटेटिव, जिनके अंदर क्वालिटी ही गलत बन रही है, जिनको एक लाइफ लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज रहेगी, और आप ये कह सकते हो कि इनके सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स हो सकता है काफी बुरे रहे. उनकी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन सी डिजीज, हीमोग्लोबिन एस सी डिजीज,
और मीथोग्लोबिनीमिया या मेथ ईमोग्लोबिनीमिया, इसको मिथाइल ग्लोबिनीमिया भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे नाम है इसके, तो कंफ्यूज ना हो, इसको मैं आगे जाके आप लोगों को समझाऊंगा बस। अच्छा, इस स्लाइड में सिकल सेल एनीमिया लिखा हुआ है मैंने, बाकी सारे डिजीजेस लिखे हुए। मेक श्योर सिर्फ इस लेवल पे आपको समझाने के लिए ये नाम एक्सप्लोनेटरी हैं और एक्सप्लोरेटरी हैं। Otherwise, from this moment onward in your life as a doctor ahead, all of them are called anemias or different types of anemias. ठीक हो गया? एनीमिया किस चीज को कहते हैं? Anybody has an idea what is anemia? बोलो, कोई तो बोलो, हाँ ना तो बोला करो, सुन हो जाते हो सारे। आयरन डेफिशिएंसी नहीं। यार साजिद, इनका कोई तरीका है, इनके सारे के कैमरे खुले हैं मेरे पास, मैं कंप्यूटर पे लेक्चर दे रहा हूँ, आई नीड टू सी इनके छोटे छोटे आइकॉन्स ऊपर कैमरे के। यस, नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, ठीक। बेटा, एनीमिया एक स्टेट को कहते हैं, देयर इज अ पाथवे ऑफ एनीमिया और देयर इज अ वे ऑफ एनीमिया। एनीमिया एक स्टेट ऑफ बॉडी को कहते हैं जिसके अंदर बॉडी इज unable to produce or have a efficient quantity of blood oxygen carrying molecules। ठीक है, ओके, मैं देखता हूं। ऑन माय क्लास अपने सारे कैमरा ऑन करो, सिट स्ट्रेट, अटेंशन के साथ कैमरे के सामने बैठो। अच्छा जी, सो जब बॉडी के पास ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टर या गाड़ियां नहीं होती है तो उसको एनीमिया में खिलाया जाता है। ठीक है, दैट शैल लीड अस टू अ स्टेट जहां पे आपको बॉडी के अंदर एक ओवरऑल असेसमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन काम हो जाता है। सो ये आपके पास क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आ गया। किसी का कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी तक, आई एम वेरी मच एनॉयड, दिस इज नॉट ऑन, यू हैव टू फॉलो द कमांड। अच्छा जी, मुनीबा को बता दो, साजिद मुनीबा को फौरन इन्फॉर्म करो, बाकी शेख साहब खुद ही इनके साथ डील कर लेंगे। बेटा क्यों आपने फैशन करके बैठना मेरे सामने? Nobody is going to watch you unless you're taking my lecture. और सारे बेटा इन सबको आप देखो कि ये क्या कर रहे, मैं अपने लेक्चर पे ध्यान दूंगा।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन एस, जो बड़ा नाम सुना होगा आज तक, बहुत सा कॉमनली इट इज बीइंग नेम्ड एंड प्रोसीडेड के hemoglobin S या sickle cell anemia. It is very commonly being produced and said afterwards. इसके अंदर आपने ये जो दरांती देख रहे हैं, ये जो नॉर्मली जिन लोगों का ताल्लुक किसी जमींदारी से है और उनको तो इस चीज का बड़ी अच्छी तरीके से अंदाजा होगा कि व्हाट दिस डिवाइस इज। इसको इंग्लिश में सिकल कहते हैं, ठीक है, सिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सिकल इंस्ट्रूमेंट इज अबाउट कि इसकी शेप है, इट्स अ मून लाइक शेप एंड दैट causes or leads into formation of hemoglobin into something like that, right? अब इस शेप को, जहां पे मैं माउस की फेर रहा हूं, इस शेप की वजह से the cell is not able to carry the significant amount of oxygen. ये समझे, जिस तरह के आप दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं ना, उस तरह आपका हीमोग्लोबिन एक्ट कर रहा है और उसके हाथों के दरमियान में ऑक्सीजन आना है, एंड द मोमेंट कि उसकी शेप खराब हो जाती है या एक हाथ अलग हो जाता है, तो एक सिकलिंग या एक आप क्या कह सकते हैं, क्रिसेंट टाइप शेप बन जाती है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन कम हो जाती है। ठीक हो गया? सो जब आप माइक्रोस्कोपिकली पेशेंट का ब्लड एग्जामिन करते हैं तो यू विल बी एबल टू सी कि पेशेंट इज हैविंग दीज क्रिसेंट लाइक हीमोग्लोबिन सेल्स इनसाइड। ठीक हो गया? इस एक डिजीज को हीमोग्लोबिन एस कहते हैं। अब जिन्होंने मेरे से सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ा था उन लोगों को शायद याद हो, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोगों को 2 दिन पहले की चीज याद नहीं होती तो वो याद हो, मगर शायद I'll recall and I will again teach you back so that so कि मैं तुम लोगों को डॉक्टर बना सकूं और मैं अपनी रोजी रोटी हलाल कर सकूं। ठीक है? मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड। A genetic disorder of the blood caused by single nucleotide substitution in the gene for beta globin. ठीक है? अब इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि एक न्यूक्लियोटाइड, अब आप लोगों को पता था कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है? पता है ना आप लोगों को? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है? यस, चलो एक ने तो कह दिया यस। ठीक है? ऑलराइट। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, एक न्यूक्लियोटाइड जब आपका एक जीन बन रहा होता है, एक जीनोम बन रहा होता है, तो बेटा कई न्यूक्लियोटाइड्स की चेन ट्रांसलेट होती है और हर न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूसेस अ सिंगल कंपार्टमेंट और एक सिंगल यूनिट ऑफ आरएनए और एमआरएनए, उसको जीन कहा जा सकता है। ठीक है? तो एक सिंगल आइडेंटिटी चेंज होने की वजह से आपका बीटा ग्लोबिन चेन चेंज हो जाती है। अब बीटा ग्लोबिन चेन क्या चीज है, मैं दोबारा से इसमें आता हूं। आपकी जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 4 चेन्स होती हैं। ठीक है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा, राइट? अब combination of 4 these chains they form a hemoglobin। उसके अंदर जो बीटा सब्सिडियरी है, जो बीटा चेन है, अगर उसके अंदर चेन, ये जो चेंज है, ये जो डिसऑर्डर है, ये सिर्फ बीटा के अंदर प्रेजेंट हो रही, राइट? अब आगे चलते हैं। ऑटोसोमली रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव वो जीन होती है जिसको एक्स के ऊपर आ सके, क्रोमोसोम एक्स के ऊपर आ सके, जो कि फीमेल के पास होती है। उसकी वजह क्या होती है, ये रूल ऑफ थंब की वजह क्या होती है कि ये एक्स के ऊपर आ जाती है? क्योंकि बेटा वाई क्रोमोसोम के ऊपर अगर कोई जीन होगी, वाई के साथ जो दूसरा क्रोमोसोम मिलता है, यानी ये पेयर्स में आते हैं हमारी बॉडी में, तो जो मेल होता है उसके पास एक्स एंड वाई होता है।
जो फीमेल होता है उसके पास एक्स एंड एक्स होता है। तो अगर कोई चीज वाई क्रोमोसोम के ऊपर है तो जब एक्स क्रोमोसोम जो उसके साथ है वो उसके पास एक हाथ उससे ज्यादा है, वो लंगड़ा है वाई क्रोमोसोम। सो इन ऑब्वियस रीजंस एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जब आपस में लड़ेंगे तो एक 4 हाथ और बाजुओं के साथ लड़ा और एक लंगड़ा है, तो जो चारों हाथों पैर वाला है वो जीत जाएगा। तो वाई के ऊपर जो भी जीन है वो रिसेसिव हो जाती है और जो एक्स के ऊपर है वो डोमिनेंट हो जाती है। तो जब एक रिसेसिव जीन ने रिप्रेजेंट होना है दैट हैज टू बी ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स के ऊपर जीन है जो डिजीज वाली है और वाई साथ है तो वाई तो उसे जीत ही नहीं सकता, तो जो रिसेसिव जीन है वो एक्सप्रेस हो जाएगी। सिमिलरली अगर यही रिसेसिव जीन एक्स के ऊपर है और दूसरा एक्स नॉर्मल जीन वाला है और वो फीमेल के अंदर होगा तो वो नॉर्मल एक्सप्रेस हो जाएगा, ये रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि एक्स और एक्स जब आपस में लड़ेंगे तो जो डोमिनेट होगा वही एक्सप्रेस होगा। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि इस डिजीज की ज्यादातर अकरेंस मेल में होती है। जब भी आप ऑटोसोमली रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, एक टर्म है जिसके आपको ये अंदाजा होता है कि दी प्रेजेंस ऑफ दिस डिजीज इज मोर इन मेल रादर देन फीमेल ड्यू टू द एक्स एंड वाई। ठीक हो गया। उसके बाद इट अकर्स इन इंडिविजुअल हु हैव इनहेरिटेड 2 म्यूटेड जीन्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, अब इसको भी जेन में रखो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। दैट कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन ऑफ द ग्लोबिन मॉलिक्यूल। अच्छा जी, द म्यूटेड बीटा ग्लोबिन चेन इज डेजिग्नेटेड और खिलाई जाती है, इसको डिनोमिनेट किया जाता है बीटा एस के नाम से, राइट? जहां पे बीटा सिंपल होता है या बीटा 1 और 2 होता है या बीटा 2 कहलाता है, वहां पे इसको बीटा S2 कहलाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको लिखना होगा तो आप एस बीटा नहीं लिखोगे बेटा, एग्जाम में भी ये जेन में रखना, मूडल के अंदर भी इस तरह नहीं लिखोगे, आप इसको हमेशा लिखोगे सिकल बीटा। ठीक हो गया, या HBS कैपिटल। अच्छा जी, अब आप देखो यहां पे स्ट्रक्चरली ये क्वेश्चन आता है, MCQ आता है हर दफा। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग। इस डायग्राम को देखो जरा गौर से। अमान जाग जा, ठीक है? क्या फर्क है अमान दोनों चेन्स के अंदर? शहर, मेरा लेक्चर इधर चल रहा है, तुम किधर देख रही हो? मेरी स्क्रीन पे देखो, दोनों चेन्स के अंदर क्या फर्क है, शहर और अमान दोनों बताओ। पोजीशन 6 में क्या है? शहर तुम देखो बेटा, लेक्चर मैं यहां पे दे रहा हूं, किधर लगे हुए हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? शहर क्या कर रही थी अपनी, क्या क्या किताबें खोल के बैठी हुई है, क्या क्या देख रही हो, अखबार पढ़ रही हो? फातिमा, समीम, जोहरा, इंजमा, ये तुम लोगों के कैमरा किधर है? हाँ शहर, क्या देख रही थी अपनी किताब में? नोट्स तुम बाद में देख लेना, तो लेक्चर तो ले लो बेटा। द ओनली MCQs which comes here, what is the difference between a hemoglobin A, यानी जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन S में क्या होगा? आप कहेंगे कि द म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, वर्ड है पॉइंट म्यूटेशन, इस वर्ड को याद रखना। अ पॉइंट म्यूटेशन एट पोजीशन 6 एंड एक्सचेंज ऑफ ग्लूटामिन विद वेलिन, ठीक है, that produces the HbS. In mutation of beta globin S,
The glutamate at position 6 is replaced with valine. Diagnosis: electrophoresis of hemoglobin obtained by lysed RBCs is routinely used. अब the gold standard और basic investigation of choice क्या है? electrophoresis. electrophoresis के अंदर क्या होगा कि चार्ज के अगेंस्ट दोनों का फर्क आ जाएगा. अब फर्क क्या आ जाएगा? वेलिन के चार्ज आपका ग्लूटामेट और ग्लूटामीन से बहुत ज्यादा होता है. वेलिन इज मोर इलेक्ट्रोपोटेंट और नेगेटिव देन ग्लूटामेट. वेलिन कहां पे, पहले पिछला भी प्रोटीन्स की मैंने डाइजेशन में पढ़ाया है. वेलिन की इंपॉर्टेंस कहां पे पढ़ाई थी? किसी ने किताब पढ़ी है? मैंने अपने लेक्चर में भी पढ़ाया था. वेलिन कहां पे आ रहा था? Where did we name valine? Anybody? मेरी शक्लें देख लो इस कंप्यूटर की. इतना इंपॉर्टेंट पाथवे था और मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करके पढ़ाया. कहां था वेलिन? एंजाइमेटिक एक्टिवेशन मैंने पढ़ाया था आपको. ट्रिप्सिन से आगे, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन से आगे सारे. तो मैंने क्या कहा था? इसके साथ एक म्यूएटी होती है, एक्स्ट्रा 8 नंबर प्रोटीन्स की चेन होती है जिसको ये रिलीज करता है. और वो रिलीज करने से क्या होता है कि चार्ज फॉरवर्ड होता है. ये एक चार्ज साइड चेन होती है जिसको रिलीज करता है. याद आ रहा है जब ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन बता रहा था? ये तो मेरा लेक्चर याद होगा तो तुम लोगों को वो होगा. किताब भी खोली होती तो उसमें भी लिखा हुआ, वहां पे भी वेलिन लिखा हुआ है कि वेलिन अपना साइड पे वो रिलीज करता है, वेलिन की साइड चेन. तो बेटा जब भी आपके पास वेलिन की नाम आएगा तो यू नीड्स टू हैव अ मोर इलेक्ट्रोपोटेंट अमाइनो एसिड. ठीक है? और उसका एक अल्टीमेट चार्ज ज्यादा हो जाता है. ठीक हो गया? एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आगे चलते. दोबारा से उसी की इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक डायग्राम है. ठीक है? ये बाद में आपको भी पढ़ाऊंगा. और ये अब ये जो नीचे पैटर्न है, इधर देखो, सारे स्क्रीन को देखो जहां पे मैं माउस फेर रहा हूं. ये जो नीचे पैटर्न्स है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो जेल निकलती है, ये उसका पैटर्न है. ठीक है? जहां पे ओरिजिन लिखा हुआ है, यहां पे हम ब्लड डालते हैं, नॉर्मल और जो आपका सिक पेशेंट है उनका डालते हैं. अब ये जो HbF लिखा हुआ है, ये जो HbF लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? इसका नाम है हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन या फीटस हीमोग्लोबिन. फीटल हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है या जो उसकी क्वांटिटी होती है, वो ऑलमोस्ट अडल्ट इंसान से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है. और ये बॉडी खुद से कुछ दिनों के बाद आफ्टर द बर्थ इसको चेंज कर देता है. तो इसका लैंडमार्क अलग है, मगर उन्होंने स्लाइड में दिया हुआ है. अब आप देखो, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में जाना है. ठीक है? इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या करते थे? याद है मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, सारी की सारी क्लास को पढ़ाया था. SDS पेज, सोडियम ड्यूडेसाइल सल्फेट, पेज का क्या था? पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. याद है तुम लोगों को? सर हिला दो, मैं सर से याद मुझे समझ आ जाएगी. ठीक है? उसके अंदर क्या है? सोडियम ड्यूडेसाइल सल्फेट जब डालते थे तो हम सारे के सारे स्ट्रक्चर को नेगेटिवली चार्ज करते थे और उसके अगेंस्ट पॉजिटिव चार्ज चलाते थे. ठीक हो गया? अब आप देखो, जो HbA है वो भाग के पॉजिटिव साइड पे चला गया. जो HbS है वो इतना इलेक्ट्रोपोटेंट है कि वो अपने ओरिजिन के करीब भी रहा है, जितने गिवन टाइम के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी चलाई है और जितनी क्वांटिटी में चलाई है. ऑब्वियसली यूनिफॉर्म चलाई है दोनों सैंपलों के लिए.
जब आप इसके ऊपर फोटोक्रोमैटिक लाइट डालेंगे तो जो हीमोग्लोबिन एस का मरीज होगा उसके सारा का सारा हीमोग्लोबिन ओरिजिन के पास इकट्ठा हुआ होगा, और जो नॉर्मल इंसान होगा उसका सारा का सारा हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली एट एनोड इकट्ठा हुआ होगा। ये समझ आ रही है बात की? इस डायग्राम की समझ आई है? किसी को नहीं आई फौरन पूछे और अपने सारे लाओ कि अगर तुम लोगों को समझ आ गई है। अमान सारे लाओ, नींद से उठ। Anybody who has a confusion about this slide, क्योंकि ये स्लाइड आगे मेरे लेक्चर्स को बहुत ज्यादा डील करेगी, राइट? अच्छा जी, अब ये डायग्नोसिस हमारी बन गई। अब आप आके देखें, ए इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हम सारे ए हैं। क्यों हम ए, दो ए लिखे हुए हैं? क्योंकि हमारे पास ये कपल्स में आते हैं। कपल्स में किस तरह आते हैं? एक हीमोग्लोबिन का जीन हमारे पास मां से आया, एक हीमोग्लोबिन का जीन हमारे पास फादर से आया। जिस बंदे के पास मां और बाप से दोनों से नॉर्मल आया है तो उसके जितना भी हीमोग्लोबिन बनेगा डोमिनेंट ही होगा और वो ए प्लस ए कहलाएगा या ए हीमोग्लोबिन कहलाएगा। जिसके पास आधा बीमार हीमोग्लोबिन आएगा और जिसके पास आधा ठीक हीमोग्लोबिन आएगा, ठीक है, उसके पास एक अंडरलाइन ट्रेट आएगी, एक अंडरलाइन प्रेजेंस ऑफ सिकल क्वालिटी आएगी। अब क्योंकि हमने ये कहा है कि ये डोमिनेंट नहीं, ये रिसेसिव है, तो जब उसका हीमोग्लोबिन ट्रांसलेट होना शुरू होगा और बढ़ना शुरू होगा तो उसके पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहेगा। जो सिकल सेल ट्रेट का इंसान होगा वो हमारे सब जैसे नॉर्मल होगा, उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, मगर उसके जीनोम के अंदर एक ट्रेट चल रही होगी अंडरलाइन। और ये बंदा या ये बंदी जब आगे रिप्रोड्यूस करेगी तो हो सकता है, अकॉर्डिंग टू वो डॉर्मेंट थ्योरी नहीं पढ़ी थी मैट्रिक में या ओलेवल्स में, तो हो सकता है कि ये आउट ऑफ 4 ऑफस्प्रिंग्स एक के अंदर ये दोनों रिसेसिव जीन्स दे दे, यानी 3 बच्चे इसके नॉर्मल हो और चौथा इसका बच्चा सिकल सेल एनीमिया को। फिर अगला जो स्लाइड है, स्लाइड के जो तीसरा ग्राफ है जो जिसके ऊपर माउस फेर रहा हूं, उसको लिखा हुआ है SS। ये वो लोग हैं जो कि सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट होते हैं। इनके अंदर दोनों जीन्स रिसेसिव होती हैं, यानी दोनों जो एक्स इनको रिसीव हुए होते हैं वो, या एक एक्स जो इनको रिसीव हुआ होता है उसके ऊपर रिसेसिव जीन होता है। अब ये लड़के हैं या ये लड़कियां हैं, अगर लड़कियां हैं तो दोनों के ऊपर रिसेसिव है, और अगर लड़का है तो उसके ऊपर जो उसको एक ही एक्स मिलना था वो रिसेसिव वाला मिल गया। ठीक हो गया? यहां तक समझ आ गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेट एंड अ डिजीज? ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। Trait, sickle cell trait is a patient or is a type of a hemoglobin which does not represent as a faulty hemoglobin or anemia, as a faulty anemia in a patient carrying the recessive gene, but he can transmit the recessive gene to his or her next generation. ठीक हो गया? जो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है उसके पास दोनों रिसेसिव सिकल जीन्स है, राइट? समझ आ रही है? सारे लाया करो फौरन, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सारे लाया करो। ऑलराइट, एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। कौन कहां से आ गया? ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में एक्रेज छोड़ दो इसको, ये सिकल ट्रेट का डायग्राम में किताब से खोल के देख लेना, इसको रिवीजन मारने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब जो ओवरव्यू इसके अंदर एक और चीज का मैंने इंपॉर्टेंट देना है वो दिस इज एस।
टिश्यू एनॉक्सिया। अब इसके अंदर डिजीज के अंदर हो क्या रहा है, लुक एट दिस। एनॉक्सिया लीड्स टू डीऑक्सीजनेशन, यानी जब ऑक्सीजन है नहीं तो वो डीऑक्सीजनेशन करेगा। नॉन पोलर वेलिन फॉर्म्स प्रोट्रूजन इनटू बीटा चेन। अच्छा जी, ये पॉइंट जो 2 है जिसके ऊपर माउस पे रहा हूं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट इनटू द कॉम्प्लीमेंट्री साइट on a beta chain of the another hemoglobin molecule into the site। अच्छा जी, अब आप देखो, इधर देखो, नीचे मैं माउस फेर रहा हूं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन बीटा कैसा है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया तो वो एक पिंक स्क्वायर बन गया, उसका कोई साइड पे एज नहीं निकला। और जब उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गया, यानी डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में है, या डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म क्या होता है हीमोग्लोबिन का, वो फॉर्म होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एडेड होती है, राइट। समझ आ रही है ना इस बात की। एक ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, एक डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। तो जिसके अंदर डीऑक्सीजनेशन है उसके अंदर ये नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होने की वजह से क्या हुआ है, उसकी पोलैरिटी इनवर्ट चली गई है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जो एजेस हैं वो इनवर्ट चले जाते हैं। अब हीमोग्लोबिन एस के अंदर फर्क देखो, जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आउटवर्ड निकल आते हैं। उसकी शेप के अंदर रिसेप्टर क्या होती है, रिसेप्टर्स हमेशा हमने क्या लॉक एंड की मेथड होता है, इसके लॉक्स बाहर आ जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो एक इसके रिसेप्टर्स अंदर वाली साइड में चले जाते हैं और ये प्रोड्यूसेस अनदर कपल ऑफ रिसेप्टर्स जो आउटवर्ड निकल आते हैं। इस रिसेप्टर्स की वजह से, जो कि ये आर्टिफिशियल और फॉल्टी रिसेप्टर्स क्रिएट करता है, ये रिसेप्टर्स किसी और डिजीज या एंजाइम के लिए नहीं होते। ये रिसेप्टर्स एक दूसरे को बाइंड, ये इन रिसेप्टर्स की एफिनिटी एक दूसरे के लिए। तो होता क्या है कि एक हीमोग्लोबिन दूसरे के साथ चिपक जाता है। तो पहला तो फॉल्टी मैकेनिज्म ये हो रहा है कि जी हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं आ रहा, फॉल्टी हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो पहला फॉल्टी क्या हुआ, डीऑक्सीजनेशन हुआ। दूसरा फॉल्ट क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन दूसरे हीमोग्लोबिन से जुड़ना शुरू हो गया। तो जब हीमोग्लोबिन दूसरे हीमोग्लोबिन से जुड़ना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, एक लॉन्ग चेन ऑफ ब्लड अटैच टू ईच अदर सॉलिडिफाइड मिलेगी। जैसे कि अगर आपने देखा क्लॉट बनते हुए, अगर कहीं खुदा ना खास्ता आपको चोट लगे, खून निकले, या आपने कभी कुर्बानी देखी तो खून जम जाता, क्लॉट बन जाते हैं, ठीक है। दैट क्वालिटी ऑफ नॉर्मल ब्लड हैपेंस इन हीमोग्लोबिन एस या सिकल सेल डिजीज के अंदर, या सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के अंदर हो रही होती है कि उसके सर्कुलेशन के अंदर उसका हीमोग्लोबिन एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहा होता है और क्या बना रहा होता है, क्लॉट्स बना रहा होता है। इनको मेडिकली क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इनसाइड द वेसल कॉल्ड एज थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होता है, ब्लड जहां पे थ्रोम्बस बन जाता है वहां पे एक ऑक्लूजन हो जाती है, वहां पे एक मैस बन जाता है। छोटे छोटे से आपकी आर्टरीज और वेन्स है, उनके अंदर जैसे ही कोई इस तरह का सॉलिडिफाइड मैस बना तो पीछे से ब्लड आना रुक जाएगा, आगे ब्लड पहुंचेगा नहीं। तो जिस टिश्यू को आगे ब्लड नहीं पहुंचेगा वहां पे इस्कीमिया हो जाएगा, इनॉक्सिया होगा, टिश्यू डेड होगा, और उस स्टेट को कहते हैं इस्कीमिया। जैसे कि हम पढ़ते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज, जो कि हार्ट अटैक में होता है। तो बेटा इसके अंदर अब क्वेश्चन ये नजर में आता है कि सर सिकल डिजीज के पेशेंट्स तो हमें नॉर्मली नजर आते हैं, अगर हीमोग्लोबिन एस ने इस तरह करना हो तो ये जो पेशेंट्स हैं ये सर्वाइव ही ना करें। यस, जब आप ब्लड सर्कुलेशन को थिन रखेंगे और उस पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रखेंगे, यानी उसका ब्लड के अंदर पानी ज्यादा है, सर्कुलेशन फास्ट है, तो ये जो बॉन्ड है ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मगर इसकी पोलैरिटी कम है, यानी ये चिपक के नहीं डालता।
when you give them chance to sit across for a longer time, ये वहां पे बनता है. So this kind of thrombosis formation सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में उस वक्त होती है when they go in the state of dehydration, they go in the state of vasoconstriction, यानी उनके वेसल टाइट हो गए. जैसे कि हम लोगों का जब बीपी हाई हो जाता है, पारा चढ़ जाता है, जैसे कि मेरा भी चढ़ा हुआ था, ठीक है, तो मेरे वेसल्स टाइट हो गए थे और मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, मेरा दिमाग को ज्यादा जा रहा है और इसके वजह से मेरे एंडोर्फिन्स रिलीज हुए, मैंने एंगर शो किया, मेरी वॉइस लाउड होगी और दिस इज कॉल्ड अ मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन. अब यही मैकेनिज्म अगर एक सिकल पेशेंट के अंदर होगा तो जैसे ही उसके वेसल्स टाइट होंगे उसको फौरन हार्ट अटैक हो जाएगा. उसकी वजह क्या है कि वहां पे विद इन मिनट्स थ्रोम्बस बनेगा और इस्कीमिया हो जाएगा, और यही चीज अगर उसके ब्रेन में होगा तो उसको फॉलोज हो जाएगा. सो दिस मच इज एप्रीहेंडेड बाय यू गाइस. इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है इस चीज को, ओवरऑल हीमोग्लोबिन पैथीज की जो एक कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद अभी तक हमने एक सिकल ट्रेट पढ़ा, सिकल सेल डिजीज पढ़ा, फर्क पढ़ा, और उसके बाद इसके अंदर जो इसकी थ्रोम्बोटिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो पढ़ा कि ये डिजीज कैसे हार्म्स काज करती है. यहां तक ये चार चीजें क्लियर हो गई हैं. अनीमा सारे लाओ, क्लियर है? हाँ अब्दुल्ला, शहीद क्यों गया? मेरा शहीद नहीं नजर आ रहा मुझे. मेरे शहीद मरियम, तुम्हारा क्यों नहीं वेबकैम चला पूरे लेक्चर में? ये इसको शहीद को, अच्छा चलो छोड़ो इसको. मरियम तुम्हारा क्यों नहीं चला? मरियम तुम्हारा वेबकैम क्यों नहीं चला? मरियम आर यू देयर? साजिद यार ये मरियम को देखो, ये कौन है? किधर है तुम्हारा वेबकैम क्यों नहीं चला? मरियम खान की बात कर रहा हूं. बेटा क्या प्रॉब्लम है मरियम? जवाब नहीं आ रहा तुम्हारी तरफ से मरियम खान. इट्स ओके बेटा. जावेद साजिद, इसका मरियम खान को रिपोर्ट करो, मुनीबा को. आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हर. एंड द नेक्स्ट इज बेटा, यहाँ पे आई एम कॉलिंग ऑफ माई लेक्चर. और बस ठीक है साजिद, अब मुनीबा को बता दो, मैं खुद से बात कर लूंगा, ठीक है? एंड इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज. साजिद इसको रिपोर्ट करना, जिन जिन का कैमरा नहीं है ऑन हुआ. बस ठीक है साजिद, आप रिपोर्ट करो जिन जिन का कैमरा ऑन नहीं हुआ, और मरियम खान को स्पेशली. I'm leaving off. Thank you. Allah Hafiz.